Uh, Another day at World Cup, another exciting and crazy matches. And there was everything: Haaland, Messi, Mbappe, Messi, Messi. Oh God, भाई ये इंसान के लिए मैं एडजेक्टिव लैक कर रहा हूँ. At this stage of the tournament, talent is not enough, right? Especially when managers are fighting tactically, right? Tactical battle kar rahe. They are not relying on individual brilliance. Some teams are controlling the games, some teams are surviving, and some players are creating history. Today we saw Lionel Messi continue writing new chapters in World Cup legacy. France showed why they are always dangerous. And small nation proves some organization and defensive structure can make other people's life, other teams' life difficult. Let's start with Argentina and Austria. Before I go to Argentina, because I know I'm not going to stop, let me talk about Austria. Bhai Saab, Ralph Ragnick, what an incredible job you have done. Our not Sabas, Sabister, क्या क्या परफॉर्मेंस थी यार उसकी. लेफ्ट साइड खेल रहा था वो. बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी. एंड एनी टाइम बॉल इज कमिंग नियर हिम और ही इज ट्राइंग टू टेक दैट फ्री किक या कॉर्नर्स, राइट. कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा था ये. इनक्रेडिबल गेम था उसका. देखो, दो गोल मारी अर्जेंटीना, यस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर प्रेसिंग लाइक अ मैड डॉग्स. इनक्रेडिबल गेम खेले वो लोग. दैट बीन सेड, मेसी स्टिल ओन्स द बिगेस्ट मोमेंट. देखो, स्टोरी लाइन सिंपल थी. ये जब भी मेसी खेलता, राइट. कैन अर्जेंटीना केम इनटू दिस मैच विद प्रेशर, राइट. ये तो हर अर्जेंटीनाइन का एक्सपेक्टेशन रहता, राइट. दे हैव टू गिव अ 10 on 10 परफॉर्मेंस. Everyone asked the same question: can Messi still decide games at the highest level? And the answer is yes. Not even Messi, दो खाली दो गोल स्कोर नहीं करा. He becomes the World Cup leading goal scorer with 70 goals. Man, that is incredible. But the interesting part was not only Messi, it was Argentina who managed the match. क्या प्यारा गेम था फकुंदो मदीना का. लुसांद्रो मार्टिनेस was एवरीवेयर. और क्या बोलते हैं, एंजो का गेम अच्छा था. डिपॉल तो भाई साहब ये चार पांच फेफड़े लेके भागता भाई. मैकेलिस्टर अच्छा दिखा बॉल पे. एंड लुतारो मार्टिनेस वन यू द फर्स्ट पेनल्टी विच मेसी मिस्ड इट. आयरॉनिकली उसका हैट्रिक हो सकता था आज. बट that's okay. We Messi fan, we don't care. Winning is what important, and that's what he did. He won. Argentina wanted control, and the ideas were simple: keep possession, move Australia side to side, create space between the midfield, and let the Messi do the Messi thing. The problem was that ऑस्ट्रेलिया डिफेंस बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रखती, एंड दे ट्राई टू रिमूव मेसी स्पेसेस. सो बेसिकली क्या कर रहे थे, दैट दे डोंट चेस मेसी, दे डोंट गिव हिम ओपन एरियाज. तो उसमें क्या कर रहे थे, अर्जेंटीना राइफल आउट हो जा रहे थे कि भाई जब सर कभी भी पास देना है तो सर उठा के देख रहे, तो बेसिक बसी वाज गेटिंग ऑक्यूपाइड. आजुक बाजुक रह रहे, उसके साथ बंदा नहीं रह रहा था. सी 1v1 with Messi, you're done and dusted. Look what happened to Guardiola semi-final with that third goal of Argentina. Right, 1v1 you're done. उन्हें छोटे स्पेसेस से निकाल देगा, मार देगा गोल. But they were not giving him space. But it doesn't work that way, right? Austria did a good job stopping central progressions. ये तो बोलना पड़ता. But the problem with defending Messi is that you can't stop him for 80 minutes. But only he only needs a moment to create that magic and boom, you're done. भाई साहब जो गोल मारा है ना भाई, वो it reminded me prime Messi from Barcelona भाई. फर्स्ट गोल जो मारा है, great. He his role is changed. The older Messi is not running behind defenders constantly. Now he's finding pockets, creating overload, चूजिंग द मूवमेंट, और डीप आ जा रहा कभी कभी. कभी कभी लिसांद्रो मार्टिनेज से बॉल लेके क्रिएट कर रहा था भाई उन्हें. बट द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट शुड बी अर्जेंटीना डोंट नीड टू बी डोमिनेंट एवरी मिनट. दे
हैव टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे, बिकॉज उन लोग क्या कर रहे थे मालूम है अर्जेंटीना, कि एकदम गेम का लेवल और स्लोनेस एकदम ड्रॉप करते थे, एकदम फ्लैश में पिक कर रहे थे, इंस्टेंट में इंस्टेंट अटैक्स क्रिएट कर रहे थे. बट या मेसी टेक अ बाउ डाउन भाई साहब. आई एम ए मेसी फैन, बट भाई ये बंदा, आई हैड टीयर्स इन माई आईज. और जब उन्हें पेनाल्टी मिस करा, राइट, आई फेल्ट सो बैड. लेकिन मैं मानूंगा, he is an example, a role model to every human being who feels there is not a second chance, या कोई फेलियर के बाद सक्सेस नहीं रहता. हाउ मेनी टाइम्स दैट ही फेल्ड in the big tournaments, how many times look at where he is standing now. He's enjoying the games, man. He's enjoying the game. आ रहा, उसको मालूम कि भाई टीम्स आ रहे, टीम्स रोक रहे, टीम्स डिफेंड कर रहे, एक पिक पॉकेट हो जा रहा है, लेकिन उसको एक मूवमेंट फाइंड करना है. हिल ब्रेक थ्रू. अरे भाई उसके दो तीन असिस्ट भी हो जाते थे, लुतारो. और एक पास तो उसको दिया था, क्या नाम है अपना, अरे यार नंबर 9 एटलेटिको मैड्रिड का, जुलियन को दिया था, क्रिएट नहीं कर पाए, कोल नहीं कर पाया. बट या दैट बीन सेड, कांग्रेचुलेशंस अर्जेंटीना, वेल डिजर्व विन. बट ऑस्ट्रिया मैन, आई सी यू गाइस गोइंग डीप इनटू टूर्नामेंट. बहुत अच्छा गेम है तुम लोगों का, बहुत अच्छा. रैल्फ रैगनिक हैव मेड यू गाइस अ बीस्ट्स. ऐसा बहुत बहुत जबरदस्त गेम था. टॉकिंग अबाउट बीस्ट एंड स्केरी मॉन्स्टर, लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस एंड इराक. भाई साहब फ्रांस की डेप्थ भाई बहुत क्रेजी है. फ्रांस आर ऑलवेज डेंजरस. दिस इज अ टीम दैट कैन गो स्कोर एवरी मैच 3 to 4 goals इजिली, राइट. ये लोग बॉल पोजीशंस अच्छा रखते हैं, अटैकिंग प्रोग्रेस अच्छा, क्विकली फिजिकल बैटर्स अच्छा विन करते हैं ये लोग. एंड सेंटर डिफेंडर पेयरिंग भी बहुत सॉलिड है, सालिबा उपमकानो की. बट France use the biggest strength, momentum. That's a real thing. And they attack constantly, change the positions. The idea was pull the defender out, create gaps, and attack those gaps. Simple as that. कि वो तो उन लोगों के पास डेम्बेले है, क्या नाम है अपना, एम्बापे है, उन लोगों के पास डुए तो नहीं खेला, बारकोला है, चर्की आया बाद में. तो इन लोगों के पास ऐसे प्लेयर्स है जो डिफेंडर्स लेते अपने साथ. तो या बट किलियन एम्बापे स्कोर 2 goals. थर्ड गोल डेम्बेले मारा, और सेकेंड हाफ बहुत 2 या 3 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ थंडर स्टॉर्म्स इन पेंसिल्वेनिया. गुड, आई मीन अच्छा था कि प्लेयर सेफ्टी को ज़्यादा देख रहे हो लोग. बट इराक तो भाई लो ब्लॉक में कॉम्पैक्ट लाइन काउंटर अटैक, आई मीन that's what you expect. There's not too much to talk about that. But the star boy, Kylian Mbappe, even when he doesn't score right every time, he is the biggest impact in fear. Because defenders एक वक्त वो अपने रन पे चले गया, राइट, दो तीन डिफेंडर्स को लेके चल जाता. डिफेंडर ऑलवेज ड्रॉप डीप बिकॉज दे नो वन मिस्टेक इज इक्वल टू एम्बापे बिहाइंड देम. सिंपल. और डिडियर जुजॉम can win ugly, can win beautifully. The flexibility is why they are always World Cup contender. That's why they are always World Cup, World Cup जीतने की contenders है ये लोग, always. But yeah, good game by France, professional game. They won it, done and dusted. They move on to next chapter now. Talking about next chapter, Norway, Senegal. Bhai Saab, what a game. 3-2 it ended. Norway, हालैंड गोल मारा, हालैंड के पास और गोल मारने के चांस थे. और नॉर्वे बॉल पोजीशन अच्छी कर रही थी, बिल्डअप अच्छा कर रही थी. 90+ मिनट में सेकेंड गोल गया, जो ज़रा कियोस क्रिएट हो गया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज ओके. एंड सेनेगल वाज, आई मीन, सार के अलावा कोई मेरे को स्पार्क दिख रहा नहीं था मेरे को चीज़ों पे. माने वो ट्राइंग द लेवल बेस्ट, बट उतना क्लिक हो नहीं पा रहा था. बट इवेंचुअली नॉर्वे वंस दिस गेम. गोल डिफरेंस पे फ्रांस आगे. नेक्स्ट मैच विल बी हालैंड एम्बापे, मैन इट्स गोना बी क्रेजी. और मजा आएगा फॉर श्योर. बस सेनेगल हैज टू पुल अप द सॉक्सेस. दे आर कोट एंड कोट AFCON चैंपियंस. दे आर नॉट, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा. बट
लैकलस्टर परफॉर्मेंस थी, बट गुड विन बाय नॉर्वे फॉर शो। क्रिएटिविटी अच्छी थी, ओडेगार का अच्छा गेम था, हालैंड बहुत प्यारा। क्या है, when Norway had spaces, right, they were looking dangerous. When Senegal forced mistakes, they become dangerous. अब पहला गोल तो उसकी मिस्टेक से चाहा था, कैप्टन की वजह से, क्या नाम है अपना, कुलबाली की वजह से। But the bigger World Cup meaning is this is the type of matches smaller team can win. Structure and intensity can compete with talent. So that is that, but good win by Norway. Now next match के लिए I'm hoping for a good match for sure. Talking about next match, just now Jordan Algeria का मैच खत्म हुआ, Algeria won 2-1. um, जॉर्डन अर्ली गोल लीड ले रही थी, बट अल्जीरिया केम बैक। डिसिप्लिन बीट्स रेपुटेशन वाला मसला हुआ ऐसा, बट या जॉर्डन का सिंपल था, स्टे कॉम्पैक्ट, प्रोटेक्ट द सेंट्रल एरियाज, अटैक क्विकली। अल्जीरिया क्या थी, बहुत मोमेंट्स पे खेल रही थी, इंडिविजुअल बिजनेस पे जा रही थी, अटैकिंग प्रोग्रेस तो होता। भाई मारस तो मैन सिटी वाला, मैं मारस को देखो तो मैन सिटी वाले मारस की फ्लैशेस आते, बट दैट इज रॉन्ग वे टू लुक एट हिम नाउ। हिज पास्ट हिम हिज बेस्ट नाउ। उसको एज इट इज जो है वो बंदे को हमको देखना चाहिए, उसके ऊपर ही ओपिनियन बनाना चाहिए। ही यूज्ड टू डू एक्स और वाई इन मैनचेस्टर सिटी, वाई इज नॉट एबल टू डू इट। गैप आ गया ऑलरेडी क्वालिटी में, राइट? But yeah, good game, good win by Algeria, and yes, all the best for next matches. And let's see tomorrow. Tomorrow gonna be crazy good games, and I'm looking forward for it for sure. Tomorrow, हमारे बड़ी भैया Ronaldo is playing. Portugal is taking on Uzbekistan. England is taking on Ghana. Panama is taking on Croatia, and Colombia is taking on DR Congo. So interesting matches, and let's see how things will turn up. Right? See you in the next one.